हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਡਵਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਥੀਸ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then we will be continuing with discovery of neutrons। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਬੈਕਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। मतलब बाय चांस ही दोनों चीज़ां ही यूरेनियम सॉल्ट और फोटोग्राफिक फिल्म एक ड्रॉर दे विच इकट्ठियां ओवरनाइट पईयां रहियां। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਡਾਰਕਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਲਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ? ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਾਲਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, एयर ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਲੋ ਕੀਤਾ। So this process of this phenomenon of spontaneous emission of active radiation by certain elements is called radioactivity। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रेडियोएक्टिविटी ਦੀ डिस्कवरी हुई कि अपने आप ही एमिशन ਹੁੰਦੀ है एक्टिव रेडिएशंस ਦੀ कुछ एलिमेंट्स द्वारा। इस फिनोमिनन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ रेडियोएक्टिविटी। कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जांपल्स हैं they are uranium, radium, polonium and thorium। Later on it was found that ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਡ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਰੱਖਤੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਪੌਟਸ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ पॉजिटिव चार्ज है और जेडी रेडिएशन इत्थों दी आ रही है और पॉजिटिव फील्ड वाल मुड़ गई, इन्ना मतलब की होया कि इस रेडिएशन दे उत्ते नेगेटिव चार्ज है एंड जेडी किसी पासे डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो न्यूट्रल है, उन्होंने आपां गामा रेज कहने हैं। हुण आपां इन्हां नूं समझण दी कोशिश करांगे कि अल्फा रेज की हुंदी है, बीटा रेज की है ते गामा रेज की हुंदी है। अल्फा रेज होंदियां हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम एक ऐसा एटम है जिनका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। हीलियम दे न्यूक्लियाई नु, न्यूक्लियस सिंगुलर हुंदा है, न्यूक्लियाई प्लूरल हुंदा है। हीलियम न्यूक्लियाई नु क्या गया अल्फा रेज इन्हां ऊपर पॉजिटिव चार्ज से। तो कुल मिला के कितना चार्ज होएगा? एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन्स होंगे, इनका मतलब है 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ते जे आपां वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होंदी है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। 2 यूनिट्स से कितनी होएगी? 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होएगा? मास नंबर 4 तो आपां नूं आइडिया है कि 4 यूनिट मासेस होंगे। एक यूनिट मास मतलब 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अपने को आंसर आ जाता है अल्फा रेज दे लई मास दा 6.6 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। नेक्स्ट है बीटा रेज। बीटा रेज ਜਿਹੜੀਆਂ हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड ਹੁੰਦੀਆਂ हैं। दे आर एक्चुअली
stream of electrons. ये चीज याद रखने वाली है। अल्फा रेडिएशन जड़ियां सी ਉਹ हीलियम न्यूक्लियाई है, बीटा रेज जड़ियां हैं they are stream of electrons। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? same as that of electron। इलेक्ट्रॉन ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। और मास कितना है? बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilograms। लास्ट इट इज गामा रेज। गामा रेज एक्चुअली बहुत ही हाई एनर्जी वालियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ਹੁੰਦੀਆਂ जिन्हां ते कोई चार्ज नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। Now we will move towards the discovery of neutron। So discovery of neutrons ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੈਡਵਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ and he found ਕਿ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਟਰॉन्स। एक्चुअली ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ रिएक्शन विद अल्फा पार्टिकल तो आपको नु समझ आएगा बेरिलियम न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9। सो 4 + 2 6 बन जाता है ते कार्बन न्यूक्लियस बनया है 9 + 4 13 पर कार्बन दा वेट है 12। दैट मीन्स इथों दी एक पार्टिकल निकलिया जिन्ना नाम न्यूट्रॉन रखा गया। दरअसल ये रिएक्शन सीधी ऐ ही समझ नहीं सी आ गई, इनदे लिए कुछ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰॉन्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟॉमिक ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ उन्ने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंदे हैं। इस करके एटम पे कोई चार्ज नहीं हुंदा। हुण जे एटम दे उत्ते कोई चार्ज नहीं है तो इनका मतलब भी एटम दा जिहड़ा भार है वो इक्वल होना चाहिए टू द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वेट ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। जब एटम दे विच दो ही पार्टिकल हले तक डिस्कवर होए सीगे इलेक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स, तां एटम दा जिहड़ा भार है वो इन्हां दे भार दे बराबर ही होना चाहिए। पर देखा गया कि ऐदा नहीं सी। हुण देखो कार्बन की ही एग्जाम्पल लिती जाती है कि कार्बन दे विच 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटोन है। सो इनका भार कितना होना चाहिए है 6। किदा? वेट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस वेट ऑफ 6 प्रोटोन। हुण जो एटम दे विच है ही इलेक्ट्रॉन्स ते प्रोटोन्स ते उन्हां दे भार दे बराबर ही एटम का भार होएगा। हुण इलेक्ट्रॉन का भार तो ऑलमोस्ट निगलीजिबल हुंदा है प्रोटोन के मुकाबले। जे प्रोटोन के भार नूं आपां यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव मास मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास के लिए 0 ते प्रोटोन के मास के लिए आप 1 ले सकते हैं। सो अपने को टोटल वेट कितना आ जाता है एटम का 6, पर वेट ऑफ कार्बन जिहड़ा है वो 12 है। हुण इहदा मतलब कार्बन दे विच भार दे अकॉर्डिंगली कोई होर पार्टिकल की मौजूदगी इत्थों दी कंफर्म की जाती है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल विच है। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ मतलब इमेजिनरी एग्जाम्पल लैके इसे कंसैप्ट ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। देखो जिस तरह ਹੁਣ मास ऑफ आर्गन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्गन ਦਾ एटॉमिक नंबर 18 ਹੁੰਦਾ है। दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन ਤੇ 18 ही प्रोटॉन्स होंगे। ਹੁਣ इलेक्ट्रॉन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ है दैट इज 0 एज कंपेयर टू प्रोटॉन। निगलीजिबल भार ਹੁੰਦਾ है इलेक्ट्रॉन ਦਾ ਤੇ प्रोटॉन ਦਾ ਆਪਾਂ 1 मास 1 यूनिट ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ मास ਨੂੰ। तो आर्गन का भार असी एक्सपेक्ट कर रहे सी 18, पर आर्गन का भार है 40। इनका मतलब देयर मस्ट बी सम न्यूट्रल पार्टिकल विच हैज यूनिट मास, दैट मीन्स मास इक्वल टू प्रोटोन। कि कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है जिनका भार प्रोटोन के बराबर हुंदा है। तो इस तरीके नाल न्यूट्रॉन्स जिहड़े हैं वो चैडविक ने
ਅਲਫਾ ਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰॉन ਐਸੇ ਸਬ ਐਟॉमिक ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ 1.67 into 10 raised to power minus 27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰॉन ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਔਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਟਰॉन ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ? ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 7 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੋਣਗੇ ਤੇ 7 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर की हुंदा है नंबर ऑफ प्रोटॉन ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दा जोड़, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन दा मास नंबर है 14। इनका मतलब नाइट्रोजन दे कोल एक एटम कोल टोटल कुल मिला के 14 प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब प्रोटोन ते न्यूट्रॉन्स दी टोटल संख्या 14 होएगी। एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंसेप्ट तो एक होर चीज सामने आती है कि ਅਸੀਂ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं जे सानू मास नंबर पता होवे ते एटॉमिक नंबर पता होवे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन दे सबस्क्रिप्ट ते लिखा होया है 14 और सुपरस्क्रिप्ट ते लिखा होया है 30। सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। इनका मतलब ये होया कि सिलिकॉन दा एटॉमिक नंबर 14 है और सिलिकॉन दा मास नंबर जेड़ा है दैट इज 30। हुन एटॉमिक नंबर दा मतलब की हुंदा है जिन्ना एटॉमिक नंबर उन्ने ही इलेक्ट्रॉन्स ते उन्ने ही प्रोटॉन्स। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 प्रोटॉन्स। मास नंबर दा मतलब की हुंदा है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हुन आपां मास नंबर दे विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दी जगह ते एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो मास नंबर का फॉर्मूला की बन गया एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर दे विचों जे एटॉमिक नंबर माइनस कर दिए इनू इधर ले जाइए तो अपने को की आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सिलिकॉन दे केस विच मास नंबर है 30 ते एटॉमिक नंबर है 14, अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 16। So silicon has 16 neutrons in its atoms. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ atoms of the same element having same atomic number but different mass number। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 3 ਐਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ हैं। 1H1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, 1H2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਔਰ 1H3 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रीटियम। इन्हां तिन्ना दा एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन दे ही एटम्स हैं। इन्हां एटम्स दे विच फर्क की है, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स के मामले च आपां याद रखना है कि अजिहे एटम जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोप्स दे विच नोट करन वाली गल ये है कि
कि इन्हां दे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इन्हां मतलब इन्हां सारे एटम्स कोले इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्क किंदे च है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन्हां दे वख-वख होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज आइसोबार्स। आइसोबार जिवें तुसीं एग्जांपल तो ही समझ सकते हो, आइसोबार दो अलग अलग एलिमेंट है। इनका मतलब डिफाइन किद्दां करांगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज सेम। सो इत्थों दी आपां नूं पता लगदा है कि इन्हां कोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स may be different, number of protons will also be different, but total number of proton and neutron they are same. Next is isotone. एग्जाम्पल तो देख के आपां नूं क्लियर हो जाना चाहिए है कि they are atoms of different element having different atomic number, different atomic masses. So what is same in them? They all are having same number of neutrons. जे तुसी मास नंबर दे विचों एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो तुहानूं ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जेडे इन्हां सारे केसेस च 16 आ रहे हैं। सो दैट मीन्स आइसोटोन वो एटम्स हुंदे हैं जेडे डिफरेंट एलिमेंट से होन, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, पर उन्हां च नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। लास्ट आ जांदा अपने कोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज केड़े हुंदे हैं? हुण इत्थे आपां नूं थोड़ा जा समझना पएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम तो ही पता लगदा है जिन्हां कोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होन। अच्छा हुण इत्थे तुसीं देख सकदे हो कि सिर्फ एक नियॉन न्यूट्रल है, बाकी दे उत्ते किसे उत्ते नेगेटिव चार्ज है ते किसे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है। तुसीं की करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कड्ढण दे लई कि जे तां किसे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है तां एटॉमिक नंबर दे विचों चार्ज नंबर जिहड़ा है वो माइनस कर दो। जिवें सोडियम दा एटॉमिक नंबर 11 है, +1 चार्ज है, 11 दे विचों 1 माइनस कर दो, 10 आ गया। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 12 दे विचों 2 माइनस कर दो, 10। एल्यूमीनियम एटॉमिक नंबर 13, 13 दे विचों 3 माइनस कर दो। पर जे किसे उत्ते नेगेटिव चार्ज है, इहदा मतलब की होया कि आपां एटॉमिक नंबर च ओना चार्ज नंबर ऐड करांगे। नाइट्रोजन दा नंबर हुंदा है एटॉमिक नंबर 7, 3 ऐड करता बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन दा एटॉमिक नंबर 8 तां 2 ऐड कर दांगे बन गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन दा हुंदा है 9, 9 दे विच 1 ऐड करांगे बन जाणगे 10। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो हुंदे हैं कि जेड़े चाहे न्यूट्रल है चाहे चार्ज्ड हैं बट उन्हां सारियां दे विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड़े हैं वो सेम होंगे। सो आई होप तुहानूं अज दा ये कंसैप्ट अच्छी तरह समझ आया होएगा। न्यूट्रॉन्स किवें डिस्कवर होए, रेडियो एक्टिविटी की हुंदी है, एटॉमिक नंबर मास नंबर की हुंदा है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हुंदे हैं। नाल दी नाल नोट्स बना भी सकते हो ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच बेटा नोट्स दा लिंक भी दिता गया, तुसीं उत्थों भी लै सकदे हो। थैंक यू।